Good morning to all of you guys, and today we are meeting actually to start absolutely a new topic. The topic that I'm starting today is very important for our curriculum, and the name is Capital Budgeting Decisions. Basically, in short form, we call it as CBD. CBD, that is Capital Budgeting Decisions. Now, a brief introduction as to what do you mean by CBD, first of all, and why CBD. First of all, the two main functions of the entire financial management is procurement and application of funds. कोई भी बिजनेस की बात करेंगे ना तो दो मेन चीज़ें होती है. फर्स्ट वन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, सेकेंड वन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स. प्रोक्योरमेंट बेसिकली हम इसे कहते हैं द फाइनेंसिंग फंक्शन, and the application, that is investment of the funds, basically are known as investment decisions. So this is known as financing decisions and this is known as investment decisions. Financing decisions are covered by topics known as cost of capital, capital structure decisions, capital structure theories, leverages, and investment decisions is taken up by one huge chapter known as capital budgeting decisions. So basically हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देखेंगे. अब अगर इन्वेस्टमेंट्स की बातें करें तो एवरी कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट इन एसेट्स एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसेट्स. फर्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होगा? इन्वेस्टमेंट्स होगा फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स होगा करंट एसेट्स में. करेक्ट? Investment in current assets is governed by basically working capital, that is day-to-day requirements. Investment in fixed assets are the one which I'm going to deal in this chapter. Current assets को working capital पे जाने देते हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग chapters हैं, but we are going to deal with investment in fixed assets. So basically what is capital budgeting decisions? They are decisions which relate to the allocation of the funds, or I would rather say investment of the funds in long-term assets of the company. In what? Long-term assets. That is what we call it as fixed assets for the company. Now long-term, finance में ऐसा कोई specific definition नहीं है कि 10 साल बोले तो long-term या 5 साल बोले तो long-term. In simple language, long-term का basic मतलब होगा anything which can be utilized for more than 1 year. So the scope of this chapter is so broad enough now that it will not big strategic decisions of investing into new products or starting a new market to even a smaller things like computerization of office, making your office centrally AC. Anywhere we talk about investments now, this chapter will come into the picture. This is known as capital budgeting decisions. To have a proper preview and the grip over this chapter, what people do is, they directly jump onto the questions. But I would like and appreciate you guys to go through the theory that I've given you in the textbook first. आप अगर अपना theory देखेंगे, तो first one I can see introduction. Second one मैंने brief दिया है कि capital budgeting decisions क्या होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया. उसके बाद सारे sections धीरे धीरे. So before I myself go directly on the questions, मैं आपको सब parts थोड़े थोड़े brief में समझाऊंगा. So यही करना है हमें. फर्स्ट वन ये याद रखना है कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे? फिक्स्ड एसेट्स में. आर वी क्लियर विद दैट वन? टू गुड. चलो नेक्स्ट देखिए आप. आपका नेक्स्ट टाइटल मुझे दिख रहा है फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस. कैन यू सी दैट गाइस? फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. फीचर्स और सिग्निफिकेंस आप तब समझ पाओगे जब हमें पता चले कि हम कौन से डिसीजंस ले रहे हैं. तो आपको ये बात तो क्लियर होना चाहिए था कि वी आर टेकिंग इन्वेस्टमेंट, कि फंड्स इन्वेस्ट करना है या नहीं इनटू बिग डिसीजंस इन्वॉल्विंग फिक्स्ड एसेट्स. सिग्निफिकेंस, फर्स्ट वन, पॉइंट नंबर 1, दे आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस. दे आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस. नॉर्मली हम जो प्रोजेक्ट्स या असेट्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं यहाँ पे,
they are very long term in nature. At times, you know, going into some broader market, कोई नए market में product sell करना, going there, setting up your infrastructure, they are two huge long gestation periods. Now for example, Reliance Industry deciding into entering into oil and gas. तो ऐसा नहीं है ना कि आज एक मशीन ले लिया, ऑयल बनने लगा बीच में. इट इज़ इन्वॉल्विंग अ ह्यूज प्लांट. इतना प्लांट बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करो, इट माइट टेक ईयर्स. In fact, for Reliance to set up the Jamnagar refinery, they took approximately 7 to 10 years to break it even, to start the production itself. And it involves huge things. Relocation of people, the land, so many decisions together. So basically, we should understand that they are long term in nature. Second, it involves substantial commitment. It involves substantial commitment. First one, they are long term in nature. It involves substantial. The amount of money that we talk about here can be huge. Of course, it involves a very small decision like buying an AC also, but it also involves setting up a project also, entering into new market also, and that can be huge amount of capital investments needed. Third one, it is generally found these decisions are irreversible. These decisions are irreversible. ये ऐसे decisions नहीं है जो आज कर लो और कल हम इसे reverse कर दे. बॉस अगर एक बार ये path पे चले ना, so we'll have to continue, and for a very long period of time. और वहाँ से वापस आना, it will be very tough. Profitable company है, very good, but अगर loss में चले गए, it can even lead to closure of a company. So decisions are generally found to be very irreversible, and it also affects your capacity to operate, capacity to face competition. हम कौन से कैपेसिटी पे काम करेंगे, हमारा कैपेसिटी क्या होगा कंपटीशन फेस करने का. We'll have to be judging about all these factors, and these are some significant factors while taking a capital budgeting decisions. Three most, बाकी सब चीज़ें एकदम simple है. Three most things that you need to remember is they are long term in nature, it involves huge amount of capital commitments, and they are generally irreversible in nature. एकदम correct है guys. Too good. Next one, capital investment process दिया आपको. That how do we start the process of capital investment? So when we look into capital investment process, this was the significance, and now I'm going into something that is known as process. How do we go about taking a decision, investment decision? सबसे पहला, search for investment opportunities. Search for investment opportunities. Now I have got funds. तो सबसे पहले हम एनालाइज करें कि कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग फंड्स को इन्वेस्ट कर सकें. So basically that is known as search for investment opportunities. Are we clear? Second, screening the alternatives. Screening the alternatives. A possible when we are looking for the opportunities, we may have more than one opportunity available. Now I don't have that amount of funds कि मैं सब जगह चला जाऊँ. So I'll have to screen the opportunities available, the alternatives available, to find out which is the best alternative. Now, for example, I have an opportunity of starting a hotel. I have an opportunity of starting a hospital. I have an opportunity of starting a school education building. So यहाँ से मैं कौन से decision को implement करूँ? So we'll screen the alternatives. The first one, search. Second one, the screen the alternatives. Third one is the analysis, to find out the best thing of all the alternatives. सारे alternatives के pros cons देखेंगे, cash inflows, cash outflows देखेंगे, कौन सा profitable ज़्यादा है वो check करेंगे. So that is known as analysis. Analysis के बाद हम लोग उसे evaluate भी करेंगे. That is evaluation. Evaluation के बाद comes the next stage. This is basically the fourth one, evaluation. The fifth one is authorization. That's what I say as starting the project. Authorize it, let the project starts now.
So that is known as an authorization. तो we started, पहले हम alternatives ढूंढ रहे थे, alternatives screen कर लिए, analyze किया, evaluation किया, अब authorize कर दिया उसे, अब project चल रहा है. Now one more thing that we always need to do is implementation and control. And one more thing that I'll add up to it is known as updation and feedback. Automation and control, that is implementation. Project को authorize किया, implement करो, उस project पे अपना control होना चाहिए, because control is what the one thing will allow you to grow. Updation, अगर आप कोई ऐसे business में हो जहाँ पे constant updation की ज़रूरत है, then we should basically हमारा ही field ले लो. See the way that you are looking at me right now. You are sitting at your home, एकदम मस्त टीवी के सामने आप मुझे देख रहे हो. एक लेवल का एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे हम क्लासेस अटेंड करते थे. We used to sit on the benches. Fan used to be on, AC used to be on, not on. Conditions I don't know about it. Today you are sitting at the leisure at your home. You have a glass of water besides you. You can have food besides you. In fact, you can have a popcorn and Pepsi besides you and look at my lectures. Updation is extremely necessary. And finally, keep on getting the feedback from the project so that we can improve. Are we clear with that one? So basically, it calls for the 7 stages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stages. First one, search for the opportunities, screen the alternatives, analyze, evaluate, authorize, implement, control. And the last one is known as what? Updation and feedback. Are we clear? This is the process of capital budgeting decisions. Pakka? Chalo, next heading lo aap. What is the next heading that you can see? Types of capital investment decisions, ये हम practical में देखा करेंगे, आप इसे skip कर सकते हो. Problems and difficulties. Problems and difficulties. We'll say problems. Now, point 1. What are we planning to do here? हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट टेकअप करना है, हमें कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें असेट लेना है. तो असेट लेना है या नहीं लेना है ना. फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा डिसीजन लगाता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मैं एक स्कूल चालू कर दूँ. Now I am doing a capital budgeting decision for starting a school. तो thinking कहाँ जाएगी? We need land, we need to construct a building, we will need teachers, we will need to set the curriculum. This all will involve cost. पैसा जाएगा और फिर स्कूल चालू हो जाएगी, फीस आएगा, पैसा आएगा. We have money going out, we have money coming in, and I am looking at it as an economic activity. बॉस बिजनेस कर रहा हूँ. So कब करूँ मैं बिजनेस? अगर प्रॉफिटेबल हो तो. So what am I trying to do? मैं ये सोच रहा हूँ कि स्कूल चालू हो जाएगी, फीस कितनी आएगी, कब आएगी, पैसा कितना जाएगा. अब ये सब जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये सब फ्यूचर प्लानिंग हो रही है. और सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे चीज़ों का यहाँ पे है दैट फ्यूचर इज अनसर्टन. इज द फ्यूचर सर्टन? अभी मैंने यहाँ पे बोल दिया कि स्कूल चालू हो जाएगी, 200 बच्चे आ जाएंगे, उसकी इतनी फीस आ जाएगी. बट इज इट सर्टन 200 बच्चे आ जाएंगे? इज इट सर्टन कि वो उतनी ही फीस होगी? मैं शायद फीस कम भी करने की कोशिश करनी पड़े हमें फ्यूचर में जाके, कंपटीशन बढ़ गया हो मार्केट में. तो हम यहाँ पे जो भी प्रेमाइसिस जो हमारा रिव्यू है और जहाँ पे बैठ के हम प्लानिंग कर रहे हैं वो सब फ्यूचर पे. एंड दैट फ्यूचर इज रियली अनसर्टन. So that is the biggest minus point of capital budgeting decisions. Yes, but guys, ये तो ऐसी एक प्रॉब्लम है या ऐसा एक डिफ़िकल्टी है विच कैनॉट बी ओवरकम. हाँ, हम लोग उसके अंदर थोड़े और एनालिसिस करके वो अनसर्टनिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, बट अनसर्टनिटी हटा नहीं सकते. Nobody in the world can tell you tomorrow morning I'm gonna do that, है ना. If somebody can tell me, that's the best part. We plan, but do we stop planning? हमें पता है कल का दिन अनसर्टन है,
डू वी स्टॉप प्लानिंग? अभी आज ही मैंने प्लान बनाया कि कल हम एसएलवेल घूमने चलेंगे, अब जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे वो बात अलग है, बट क्वेश्चन इज शुड वी स्टॉप प्लानिंग? आंसर इज नो. लेट द अनसर्टेनिटी बी देयर इट्स ओन प्लेस, यू शुड स्टिल प्लान, ट्राई टू मिनिमाइज द अनसर्टेनिटीज. अभी कल एसएलवेल जाना है तो मैंने वो अनसर्टेनिटी को ब्लॉक कैसे किया? सारे लेक्चर्स कैंसिल कर दिए, सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दी. नाउ आई एम कीपिंग माई सेल्फ फ्री कि कल मैं जा पाऊँ. ऑफकोर्स अगर कुछ और हो जाए तो बात अलग है, बट प्लानिंग तो करनी चाहिए. बट प्रॉब्लम भी याद रहनी चाहिए कि द फ्यूचर इज अनसर्टन. द नेक्स्ट वन, द सेकेंड प्रॉब्लम आई कैन सी इज द टाइम एलिमेंट. द टाइम, the project can be a long gestation project and the time is huge enough. स्कूल चालू करना है, बिल्डिंग बनाते बनाते 2 साल लग जाएगी, तब की सिचुएशन कभी होगी क्या होगी, तब का अपना एजुकेशन सिस्टम क्या चल रहा होगा, दैट विल बी ऑल टोटली डिफरेंट ना. तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा. एंड थर्ड वन इज मेजरमेंट प्रॉब्लम. बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे मेजरमेंट्स करना बहुत ही प्रॉब्लम है. अभी स्कूल है, एक कैपेसिटी के साथ बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, कितना डिमांड होगा, हाउ मेनी पीपल विल एक्सेप्ट इट, that all has to be thought about na. So these are basically decisions which there is a measurement possibility or the problems available. Are we clear with that one? So we do have problems in capital budgeting, but I will kindly request you not to look at those problems too heavily, overcome them, try to negate them, but still planning to honi chahiye. So we are going to go ahead with the chapter known as capital budgeting decisions. Can we do that? Take up the next part. नेक्स्ट पार्ट लीजिए आप, टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स. अभी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने के लिए वी नीड टू हैव सर्टन क्राइटेरियाज एंड दैट्स व्हाट आई से देयर आर टेक्निक्स. नाउ व्हाट हैव वी डन इज वी हैव डिवाइडेड द एंटायर टेक्निक्स इनटू 2 पार्ट्स. The first one or the first technique that you can see are known as traditional or non-discounting techniques. Traditional or non-discounting techniques. And second one are known as discounting techniques. Traditional or non-discounting techniques basically assumes that the value of money remains constant. 1 lakh today will be 1 lakh after a year, will be 1 lakh after 2 years. तो 1 lakh 1 lakh 1 lakh सेम रहेगा. नॉन डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कहता है एंड दिस बेसिकली प्रॉप्स अप फ्रॉम समथिंग दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन. ये नहीं भूलना है कि हम इन्वेस्टमेंट करने के पहले फंड्स को कहीं से लेके आते हैं फाइनेंस, और ये फाइनेंसिंग का एक चैप्टर आप लोग ने किया दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो हमने मतलब कंपनी ने जहाँ से पैसा उठाया, कैपिटल उसका कॉस्ट है. तो अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना हो हमें, तो एटलीस्ट वो कॉस्ट तो हमें बेयर करना ही पड़ेगा ना. यस और नो? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेक्निक की इवैल्यूएशन होगी वहाँ पे ऑल कैश फ्लोज, सारे कैश फ्लोज ना, कोई अगर अपने को कहेगा कि 1 साल के बाद 1 लाख देता हूँ, पर अपने को ये याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, तो हमने जहाँ से पैसा लिया था वहाँ से उसको COC तो देना ही है, मतलब हमें KD देना है, KE देना है, KP देना है, KR देना है. वो पे करने के बाद कंपनी के पास कितना बचेगा. सो इफ़ समबडी टेल्स यू आई एम गोइंग टू गिव यू 1 लाख आफ्टर अ ईयर, तो वो 1 लाख आफ्टर अ ईयर को हम डिस्काउंट कराएंगे. All the cash flows have to be discounted, and this is known as discounted techniques. हम धीरे धीरे जाके देखेंगे डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो ऑल डिस्कशन करेंगे. बट यहाँ पे मैं एक ब्रीफ आइडिया डाल रहा हूँ आपके माइंड में. यहाँ पे कोई कहेगा 1 साल के बाद 1 लाख आ रहा है तो 1 लाख, यहाँ पे कोई कहेगा 1 साल के बाद 1 लाख आ रहा है तो उस 1 लाख का आज का वैल्यू निकालूंगा, उसको डिस्काउंट करा के लेके आऊँगा मैं. और डिस्काउंट का मतलब है
कि फंड्स जहाँ से कलेक्ट किया था उसको अपना कॉस्ट दे के मेरे पास कितना बचेगा, तो विल बी 1 लाख माइनस COC, 1 लाख माइनस COC देखेंगे फिर भी जब हम वो प्रोजेक्ट पे जाते हैं। फर्स्ट वन, अभी टेक्निक्स में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वी आर गोना रीड 1 payback period, second payback profitability, third accounting rate of return, that is ARR। तीन टेक्निक्स है, टेक्निक नंबर 1 payback period, टेक्निक नंबर 2 payback profitability, टेक्निक नंबर 3 accounting rate of return, that is ARR। डिस्काउंटिंग में फर्स्ट वन डिस्काउंटेड पेबैक, सेकेंड वन NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड वन PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फोर्थ वन IRR, that is internal rate of return, fifth one MIRR, that is modified internal rate of return। Are we exactly clear with that one? So we have got 3 techniques here and we have got 5 techniques here, 3 techniques discounting, 5 techniques non discounting। हमें ये techniques सीखनी है। By the end of the chapter you guys are gonna be master in all these techniques, clear है? Now even before we go ahead with this now, even before I start with this, without this, all the concepts here except ARR 1 2 3 4 5 6 7, all concepts except ARR will be calculated on something that will be known as cash flows, cash flow। सारे ही कैलकुलेशन हमारे कैश फ्लो पे होंगे और कैश फ्लो का एक सबसे बड़ा पार्ट होगा कैश फ्लो, मतलब पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना, हम अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लोज को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। इफ यू कैन सी दैट, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, यू कैन सी द टेबल। आउटफ्लो में सबसे पहले देखिए इनिशियल आउटफ्लो, प्रोजेक्ट है, मैं डिसाइड कर रहा हूँ मुझे अपनी ऑफिस है वहाँ पे पूरी ऑफिस को सेंट्रलाइज AC बनाना है एंड फॉर दैट आई विल नीड अप्रॉक्सीमेटली 10 ACs, 10 ACs। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 AC लेना है या नहीं लेना है सोच रहा हूँ। सो आउटफ्लो, इनिशियल आउटफ्लो, कितना पैसा जाएगा, दैट इज नोन एज इनिशियल आउटफ्लो। सेकेंड इनिशियल आउटफ्लो में ये भी पॉसिबल है कि वी रिक्वायर सर्टन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ अ पर्सन इज डिसाइडिंग टू स्टार्ट अ होटल, तो होटल कितने में बनेगा, इनिशियल आउटफ्लो। बाद में होटल चलाने के लिए डे टू डे रिक्वायरमेंट्स का पैसा भी तो चाहिए, दैट विल बी नोन एज वर्किंग कैपिटल। फिर वी विल हैव कस्टमर्स कमिंग इन ऑर्डरिंग द फूड, इनफ्लो, पैसा आएगा वहाँ से, है कि नहीं। तो वो जो हमें दे के जा रहा है इनफ्लो, वो उसको हम कहते हैं रिकरिंग इनफ्लो। उसके बाद एक और पार्ट बनता है दैट इज नोन एज इनिशियल, रिकरिंग, टर्मिनल। एट द एंड प्रोजेक्ट बंद हो गया, मैंने सोचा था ये होटल 10 साल चलाऊंगा फिर बेच दूंगा, तो 10 साल के बाद ये होटल बिकेगा कितने में। क्लियर, आइडियाज आ रहा है। बिकॉज हमें यहाँ पे सिर्फ ये डिसाइड करना है भाई बिजनेस ले कि नहीं, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है। तो सारे कैलकुलेशन किस पे होने वाले हैं, कैश फ्लो पे। और उसमें एक कैलकुलेशन पे मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा, दैट इज नोन एज रिकरिंग कैश फ्लो, रिकरिंग कैश फ्लो। डेली, अब होटल है, सो इनकम, expenses, that's what we'll have to consider. So that is the cash flow I want. Now exactly हमारे लिए cash flow का meaning क्या होना चाहिए पता है? cash flow का मतलब है net profit after tax before depreciation. This is what we want to reach on a daily level or on a yearly level.
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन, NPATBD पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, एक आंसर आएगा। इस आंसर को हम कहेंगे NPBDT, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। डेप्री माइनस मत करना, इनकम माइनस एक्सपेंसेस सब कर देना, तो NPBDT पे पहुंचोगे, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। क्लियर है? और मुझे पहुंचना कहां पे? NPATBD, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन। क्या करें? टैक्स माइनस कर दे, पक्का ना? यहां से अगर मैं टैक्स माइनस कर देता हूं तो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं पहुंच जाऊंगा ना। नेट प्रॉफिट टैक्स माइनस कर दिया तो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन, पहुंच गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? बिकॉज आप ये भूल रहे हो, टैक्स चार्ज किस पे होता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टैक्स इज ऑलवेज अ परसेंटेज, and tax is a percentage on the profit, and the profit should be after minusing all the expenses. Yes or no? What am I trying to tell you is कि यहां से हम डायरेक्ट टैक्स माइनस ही नहीं कर सकते हैं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? NPBDT से NPBDT तक पहुंचाऊं, पूरे मुझे डेप्री माइनस करना पड़ेगा, तो आई विल रीच टू समथिंग दैट इज नोन एज NPBT। फिर मुझे यहां से टैक्स माइनस करना पड़ेगा, तो आई विल रीच टू समथिंग दैट इज नोन एज NPAT। फिर यहां से मुझे डेप्री वापस ऐड करना पड़ेगा। डेप्री माइनस किया था बिकॉज NPBT पे पहुंचना था, ताकि टैक्स इस पे चार्ज होता है। अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी चार्ज ऑन दिस अमाउंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो NPBT पे टैक्स होगा, NPAT आगे, पर डेप्री तो मुझे वापस चाहिए, सो एड द डेप्रीशिएशन बैक and we reach to something that is known as NPATBD, और मेरे लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं कैश फ्लो। इनफैक्ट मैं आपसे बातें करूं अभी से कि कैश फ्लो कैलकुलेट करो तो आपके माइंड पे स्ट्राइक होना चाहिए, आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट समथिंग दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन। सिर्फ ARR को छोड़ के सारे कैलकुलेशन किस पे होने वाले हैं? कैश फ्लोज पे। अभी क्लियर? एक क्वेश्चन बनाया मैंने, चलो पिकअप करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ओनली ऑन कैश फ्लोज। हाँ, ये टेक्निक्स रहने देता हूं मैं, कैश फ्लोज की बात करते हैं। हैव अ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट वन, Pooja Limited wishes to buy a machine for ₹80 lakhs. It is expected that company will have expected net profit before depre and tax at 24 lakhs. The machine will run for 5 years. Calculate annual recurring cash flows. Net profit before depre and tax NPBDT दिया हुआ है 24 lakhs. करेक्ट एकदम? क्वेश्चन नंबर 1, NPBDT कितना दिया हुआ है हम लोग को? 24 lakhs। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनुअल रिकरिंग कैश फ्लोज। सो अगर हमें एनुअल रिकरिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट करना है तो पहले हमें यहां से क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्री। डेप्री बाय आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अनलेस until they have told you anything else, cost price minus scrap value divided by the estimated life. So what is the cost price of the machine? I can see the cost price of the machine at 80 lakhs. Scrap value दिया नहीं है, divide by 5 years, so 80 lakh minus nil divided by 5, I'm getting 16 lakh as depreciation. So this will give me net profit before tax of 8 lakhs less the tax. NPBDT दिया था तो पहले डेप्री माइनस, फिर टैक्स माइनस, फिर डेप्रीशिएशन फिर से ऐड। टैक्स का रेट 50% दिया है, सो टैक्स रेट अगर 50% है तो 4 लाख। सो बॉस NPAT विल बी 4 लाख। और भूलना मत, फिर से हम डेप्री ऐड कर देंगे उसमें, तो अगर हम डेप्री फिर से ऐड कर देंगे तो विल ऐड द 16 लाख टू 8 and we get the answer that is 20 lakhs.
20 लाख विल बी योर कैश फ्लोस, और ये 20 लाख के बेसिस पे हमारे सारे कैलकुलेशंस होने वाले हैं. आर वी क्लियर? टू गुड. डू यू अंडरस्टैंड एनपीबीडीटी से हम कैश फ्लो पे कैसे पहुंचे? अब वो लोग क्वेश्चन में हमें कुछ भी दे सकते हैं. दे कैन गिव यू एनपीबीटी, तो लेस टैक्स एड डेप्री. दे कैन गिव यू एनपीएटी, so add depre, or they can give you cash flow directly. So tell them thank you and proceed with the question. Cool. Too good. Can I take you up ahead with the concepts now? चलो concepts पे जाते हैं. आइए. तो पहला concept, the concept that we are starting is payback period. और उसी के साथ हम लोग एक और चीज़ लेंगे, that is known as payback profitability. So first two concepts, पहला payback period, second payback profitability. याद रखना ये दोनों नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है, मतलब यहाँ पे हमें डिस्काउंटिंग नहीं करनी है. वी आर गोना टेक द कैश फ्लोज ऑन द फेस वैल्यू, नो डिस्काउंटिंग. जैसे कैश फ्लो दिए वैसे लेंगे. फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे बैक पीरियड. यू कैन सी इन योर बुक्स पे बैक पीरियड. डू यू हैव इट? Payback period is the period after which we get our initial investment back. प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया है वो पैसा कितने सालों में हमारे पास वापस आ जाए, इसे हम कहते हैं पे बैक पीरियड. रीड इट. द पे बैक पीरियड इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ years which it takes the cash flow from the capital investment project equal to the cash outflow, cash inflow from the capital investment project to the cash outflow. While deciding between two or more competing projects, the usual decision is accepted which has got the shortest payback. मतलब हमारा जो दो प्रोजेक्ट अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो हम वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसका पेबैक सबसे छोटा हो. Are we clear or not? Payback is usually or commonly used as a first screening method. It is a rough measure of liquidity and the rate of the profitability. Are we clear with that one? So payback in our language एकदम simple में is a period after which we get our initial investment back. एकदम clear? Have a look at the question directly. मैंने आपको payback period के advantages, disadvantages भी दिए, वो आपके पढ़ने के लिए. We are not going to discuss them in the classroom, in the recordings here. I'll directly jump on the question. Question number 2. और सारे कैलकुलेशन करोगे किस पे आप? ये दोनों की चीज़ों के कैश फ्लो पे. फर्स्ट वन, हरिता लिमिटेड विशेस टू मेंटेन और विशेस टू बाय अ मशीन फॉर 40 lakhs. It is expected that company will have an expected net profit before depre and tax for 12 lakhs. The machine will run for 5 years. Calculate the cash flow, the payback period and the payback profitability. Assume the tax rate at 40%. सिंपल है. लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ने इसे पे बैक कैलकुलेशंस पे किया है. बट हैव अ लुक हियर. फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट? आई गेस ₹40 लाख. मतलब हम लोग ने 40 लाख रुपीस प्रोजेक्ट में डाला है. पेबैक पीरियड का मतलब होता है ये 40 लाख रुपीस वापस कब आएगा. दैट्स व्हाट वी वांट टू नो. इनफ्लोस, दिस इज आउटफ्लो डन. इनफ्लो में पैसा कहां से आ रहा है? रिकरिंग इनफ्लो. हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्री. बेसिकली कैश फ्लो कैलकुलेशन करनी है. सो फर्स्ट वन, इसके लिए उन्होंने हमें एनपीबीडीटी दिया हुआ है. NPBDT. How much is NPBDT that they have given to you? 12 lakhs. Minus कैश फ्लो पे पहुंचने के लिए डेप्री 40 लाख का प्रोजेक्ट है. स्क्रैप वैल्यू नील, लाइफ 5 years. I guess 8 lakh is a depreciation. So we'll have NPBT at 4 lakh. टैक्स कितना परसेंट टैक्स दिया गया? 50% is a tax. So 50%, 2 lakh. So we'll have 2 lakh as NPAT.
Add the depreciation back again. Cash flow निकालने के लिए depreciation is 8 lakhs. So 2 lakh plus 8 lakh answer comes to what? 10 lakhs. And this will be your cash flow. मतलब हमें 10 लाख रुपया मिल रहा है cash flow. 10 lakh is your cash flow. Perfect है आपका आंसर. तो हमारे पास कैश फ्लो कितना आ रहा है एक साल में 10 लाख. एंड दिस 10 लाख विल कीप ऑन कमिंग फॉर 5 years. अब आप ये सोचिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना वापस कब आएगा. पे बैक पीरियड पूछ रहा हूं मैं. फर्स्ट वन, ये कैश फ्लो मिल गया, ये हमारा आंसर नंबर 1 है. आंसर नंबर 2, पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड is number of years after which we get our initial investment back. 40 लाख लगाया है, हर साल 10 लाख रुपया आ रहा है, कितने सालों में अपना पैसा वापस आ जाएगा? सिंपल कैलकुलेशन है भाई. 40 लाख डिवाइडेड बाई 10 lakhs. आई गेस 4 साल में हमारा पैसा वापस आ जाएगा. एकदम क्लियर है. थर्ड कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी. पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट पे हम लोग को कितने का प्रॉफिट होगा. ये प्रोजेक्ट पे हम लोग को कितने का प्रॉफिट होगा. कैलकुलेशन एकदम सिंपल, प्रॉफिट पूछ रहे हैं ना भाई. सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. कितना आ रहा है कितना जा रहा है. हमें 10 लाख रुपया मिलने वाला है 5 सालों तक. 50 लाख, 50 लाख आएगा, 40 लाख जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट होगा 10 लाख. सो पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इज 10 lakhs. 3 कॉन्सेप्ट्स ये क्वेश्चन में क्लियर हो रहे हैं. पहला कैश फ्लो, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस किया. सेकेंड पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, द पीरियड आफ्टर विच वी गेट आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक. प्रॉफिटेबिलिटी, दैट वाज पे बैक पीरियड. प्रॉफिटेबिलिटी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. Are we clear? Too good. Copy this entire scenario. We go on to question number 3. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया आपने. सो आई विल टेक ऑन क्वेश्चन नंबर 3 ना. परफेक्ट है ना. ओके. अब हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था कि कैश फ्लोज रेगुलर है, हर साल सिंपल आ रहा है. एवरी ईयर 10 लाख आ रहा था एंड 40 लाख गया. सो वी सेड 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 4 साल में आ गया. व्हाट इफ द कैश फ्लोज एवरी ईयर आर इरेगुलर? पॉसिबिलिटी तो है ना. हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
Sarita Limited undertakes a project requiring a cash outflow of 80 lakhs. Expected cash flows for 5 years are as follows. First year 8 lakhs, second year, third year, fourth year, fifth year. Calculate payback period and payback profitability. हमें payback period calculate करना है और payback profitability calculate करना है. अभी भी हम उसी दो concept पे काम कर रहे हैं. First, this is question number 3. Initial investment is 8. Undertakes a project requiring cash outflow of 80 lakhs. अच्छा, now every year the cash flows are not same. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है? Year cash flow, cumulative cash flow. Cumulative मतलब total. Year 1 cash flow I guess 8 lakhs आया, तो cumulative is 8 lakhs. Year 2 cash flow I guess 16 lakhs आया, तो cumulative हो गया 24 lakhs. आपको समझ रहे हैं cumulative क्या होता है? Third year cash flow 28 lakhs आया, so cumulative is 52 lakhs. Fourth year, the cash flow that we got was 16 lakhs. 52 plus 16, 68 lakhs. Fifth year, cash flow is 14 lakhs. The cumulative comes to 82 lakhs. 82 lakhs में हमने 80 lakhs को cross कर दिया. मुझे 82 lakhs चाहिए था. Now, someone would rather say your payback period is somewhere between the 4th and the 5th year. Now, this is I want to actually understand that between 4th and 5th year, what is the period exactly? So, first, payback period is equal to 4 plus 4 साल तो लग गए, प्लस हमें 80 लाख वापस चाहिए था, तो 4 साल क्रॉस कर दिए. 5 नहीं बोलेंगे हम, 5 बोलेंगे तो 82 पे पहुंच गए, मुझे सिर्फ 80 पे पहुंचना था. ना 4 ईयर प्लस हम 68 पे पहुंच चुके हैं, हमें एग्जैक्टली 80 लाख वापस चाहिए, तो वो 80 लाख तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. तो 68 तक पहुंच चुके हैं, 68 से 80 जाने के लिए और कितना चाहिए हमें? 68 to 80, 80 minus 68, I need 12 lakh more out of the 14 lakh. 5वें साल में 14 lakhs आ रहा है, पर 14 लाख से मैं 82 पे पहुंच जाऊंगा. मुझे 82 पे नहीं, मुझे 80 पे पहुंचना है, तो 14 में से मुझे सिर्फ 12 चाहिए. So 12 by 14, the calculation now. First, 12 lakh by 14 lakh is 0.857. So your answer comes to 4.857 years. यूजुअली हमें आंसर यहीं तक रखना है, पर हमारे प्रैक्टिस के लिए हम बोल रहे हैं वी कैन गो अहेड विद कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स ऑल्सो इन दिस. 4.875 ईयर्स बोला है ना, सो इज इक्वल टू 4 ईयर्स. आप इस आंसर से 4 को माइनस कर सकते हैं, और वो 0.857 जो बच रहा है ना हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 12, बिकॉज हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर? 12. सो मल्टीप्लाई दिस बाई 12. व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? 10.28. So 10.28 का मतलब है दिस इज 10 months. अभी आपके पास जो 10.2 है वहां से 10 माइनस कर दो आप, -10. सो 0.2857 कुछ बच रहा है, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी डेज इन अ मंथ. अभी आप मंथ में आ चुके हो, 10 month, तो हाउ मेनी डेज इन अ मंथ? 30. सो मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 30. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 8.57. दैट इज 8.57 का मतलब क्या हुआ? 9 days approx. So I am getting my money back in 4 years, 10 months, 9 days. Are we clear with that one? Too good. फिर से एक बार प्रैक्टिस देखना. 4 निकाल लिया, 12 डिवाइड बाई 140, इट्स 0.857. दैट 0.857 मल्टीप्लाइड बाई 12, 10.28, तो 10 months लिख दिया. 0.28 मल्टीप्लाइड बाई 30, आंसर इज 9 days approx. That's your payback period. Clear?
Second question is payback profitability. Payback profitability or payback profitability, as I gave you the formula last time, inflow minus outflow. So in the question, inflow हमारे है 82 lakhs and we have an outflow of 80 lakhs. So guys, 82 lakh minus 80 lakh, answer comes to 2 lakh. 2 lakh is my payback profitability. Practice clear hai? Do we understand the payback period and payback profitability well now? Too good. Copy this answer. We can go to the next question. So we're done with the payback, right? Question number 3. थोड़ा और आगे चल के we'll do the next concept that is known as accounting rate of return. Now this concept actually stands out from all the other concepts because ये concept ना cash flow पे calculate नहीं होता है, profit after tax पे calculate होता है और थोड़ा सा हिंट सिंपल हमें उसके नाम से मिल जाता है, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. तो बेसिकली मोर देन द एफएम फंडा, दिस इज एन अकाउंटिंग फंडा कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना है. हम अगर प्रोजेक्ट में इतना पैसा डाल रहे हैं तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट अकाउंटिंग. सो दैट मीन्स इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फॉर्मूला है ARR का फॉर्मूला इज ARR is equal to ARR is equal to average profit after tax upon average investments multiplied by 100. Average profit after tax जितने भी ईयर्स है वो सबके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो विल गेट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट्स. नाउ एवरेज इन्वेस्टमेंट्स कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू ओपनिंग माइनस द स्क्रैप वैल्यू, दैट इज अ क्लोजिंग, डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू plus working capital. Average investment, you know, average investment as the name suggests is very simple कि on an average हम लोग ने इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखा. Now for example, if I say a project is 5 year long और मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 डाला and at the end of 5 year 10,000 will be the scrap value.
So 50,000 and 10,000 will be the scrap value. So on an average ये 5 सालों में कितना पैसा इन्वेस्टेड रहा है? अभी 50,000 और एंड ऑफ द 5 ईयर पे 10 हो रहा है, तो हम यहाँ पे डेप्री चार्ज करेंगे 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5. 50 माइनस 10 इज 40 डिवाइडेड बाय 5. कैन आई से 8,000 रुपी डेप्री चार्ज करेंगे हम लोग. डेप्री चार्ज करने का मतलब क्या है बेसिकली कि पैसा वो प्रोजेक्ट से निकाल लेना, बिकॉज डेप्री इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो पीएनएल में जाके लिख देते डेप्री कि खर्चा हो गया, पर एक्चुअली खर्चा नहीं हुआ. तो बेसिकली क्या हो रहा है मालूम है, वो पैसा प्रोजेक्ट से निकल जाता है. सो व्हाट हैपेंस, पहले साल 50 इन्वेस्ट किया था, सेकेंड साल 50 से 8 निकल गया, 42 पेंडिंग है. थर्ड ईयर 42 माइनस 8 34 पेंडिंग है. फोर्थ ईयर 34 माइनस 8 26 पेंडिंग है. Continuously this amount is decreasing by 8 and it will reach to 10. So on an average कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 50 minus 10 divided by 2. आप ये सारे अमाउंट्स का भी एवरेज निकालेंगे तो एग्जैक्टली वही अमाउंट आएगा आपके पास. अभी एग्जैक्टली क्लियर? 50 minus 10 is 40 divided by 2 is 20. So calculation, first one, 50 minus 10 divided by 2 is 20 plus closing. Can I say ये 10,000 तो fully invested ही रहा, ये 10,000 से कहीं पे भी कोई अमाउंट नहीं निकला, बिकॉज आप डेप्री एक्चुअली ना 40 पे चार्ज कर रहे थे, 48 ये लास्ट में 10 तो ऐसे ही रहेगा. सो 10 वॉज फुल्ली इन्वेस्टेड ओवरऑल एंड प्लस द वर्किंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में कोई भी दिया हो, बिकॉज अगर वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया है तो दैट अमाउंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. And working capital, you need to always remember, is an averaged amount. It cannot be multiplied, it cannot be divided. For example, if I tell you a person needs working capital of rupee 100 in a day, एक दिन में एक बंदे को 100 रुपया चाहिए. उसका टी स्टॉल है, सुबह को चाय और दूध लेने के लिए उसको 100 रुपये से स्टार्ट करता है वो, और एवरी डे उसे 100 रुपये का वर्किंग कैपिटल चाहिए. ठीक है, तो अगर एक दिन का वर्किंग कैपिटल 100 है, what will be his working capital requirement in 7 days? 700? नहीं, his working capital for 7 days will be 100, because working capital है ये. 100 गया, साइकिल होने के बाद 100 वापस आ गया, कल वो आज जो वापस आया वही लगाएगा. So he doesn't need to have keep a 700 rupee in his pocket. Any moment of time he should have only 100 rupee in his pocket. If I tell you what will be working capital requirement for a month, 100. What will be working capital requirement for a year, 100. Working capital एक साइकिल होता है, एक साइकिल में इतना पैसा चाहिए तो उतना ही पैसा उसका वर्किंग कैपिटल रहता है. It cannot be multiplied, it cannot be divided. So if I tell you project requires a working capital of 10,000, 10,000 will be added. So what is the formula for average investments? Opening minus closing divided by 2 plus closing plus working capital. Or closing is nothing but the scrap value. ARR, दिमाग में ये सेटिंग कर लो कि ARR is the only concept जो कैश फ्लो पे कैलकुलेट नहीं होगा, but it will be calculated on something that is known as profit after tax. Are we clear? Have a look at the question. Question number, last में I guess हम लोग ने question number 3 complete किया. So question number 4. A project of 20 years life requires an original investment of 1 lakh. The other relevant information is given below. 1. Average annual earnings before depre and tax. Average annual earning before depre and tax का मतलब NPBDT 20,000. Tax rate 50%. Calculate payback period, payback profitability, average rate of return, and rate of return on the original investment. So first one, have a look at this. Question number 4. Question number 4. Initial investment is 1 lakh and life is 20 years. This is the information they have given to you.
अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले पे बैक, पर पे बैक कैलकुलेट करने के लिए कहना है मुझे कैश फ्लो की जरूरत पड़ेगी, एंड दे आर सेइंग NPBDT मेरा 20,000 है, NPBDT 20, पहले कैश फ्लो तक पहुंचने के लिए कहना है पहले डेप्री माइनस करूंगा मैं, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20, 5,000, 15,000 मुझे मिल गया NPBT लेस द टैक्स, 50% इज द टैक्स, 7,500, 7,500 मुझे मिल गया NPAT plus the depreciation added back to it, that is 5,000. So I will have a cash flow of 12,500 और ये कैश फ्लो 12,500 मेरे पास 20 इयर्स तक चलेगा। अब मुझे इससे कैलकुलेशन करनी है कि मेरा पे बैक कितना होगा। तो फर्स्ट वन, पे बैक पीरियड, सो पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। 1 लाख, हर साल 12,500 आ रहा है, 1 लाख divided by 12,500, I guess it's gonna take 8 years exact, 8 years to get my money back, correct? Second, payback profitability, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो, टोटल इनफ्लो 12,500 फॉर 20 इयर्स, 12,500 फॉर 20 इयर्स। कैलकुलेशन 12,500 into 8 is lakh and 50. I guess I'm getting 2,50,000 back. My outflow was 1 lakh. My payback profitability is 1,50,000. Are we clear with that one? This is payback profitability. Payback period, payback profitability. Third, ARR, accounting rate of return, is equal to average profit after tax upon average investments multiplied by 100. Please remember, calculation starts with average profit after tax. So what do we have in average profit after tax? Profit after tax 7,500 and यही average होगा because the same profit is going to come for 20 years. So it does not make sense adding for 20 times and dividing by 20. Answer same आएगा. So average profit after tax is 7,500 divided by average investments. एवरेज इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 प्लस क्लोजिंग प्लस वर्किंग कैपिटल। एवरेज इन्वेस्टमेंट्स लिख रहा हूं मैं यहां पे, इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 प्लस क्लोजिंग प्लस वर्किंग कैपिटल। यहां पे डिवाइड बाय 2 नहीं, बिकॉज आई सेड इट, दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस। ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग nil, divide by 2 plus nil plus nil. Answer is 50,000. Average investments is 50,000. 7,500 divided by 50,000 into 100 is equal to 15%. क्या मिला 15% हमें? ARR. समझ रहे आपको ARR? That's a third concept. पहले हमने पे बैक किया, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी किया, ARR, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय दी 100. क्लियर? टू गुड. फोर्थ, ARR, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बट ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। दे सेड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेशन करो, तो बॉस और भी सिंपल हो गया ना। 7,500 डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख इनटू 100. आंसर कम्स टू 7.5%. उन्होंने कहा है इसीलिए ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे किया, वरना द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज यू शुड नॉट डू इट अनलेस एंटिल दे आस्क. आप ऑलवेज एवरेज इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेशन करेंगे. एकदम क्लियर? टू गुड. चलिए कॉपी दिस एंटायर क्वेश्चन, देन आई कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे.
So we're done with 4. Question number 5. Same concept practice करने के लिए, but एक levels बढ़ा रहा हूँ मैं अभी. Question number 5. First, the project needs an initial investment of 50,000. Tax rate is 55%. The company follows straight line method of depreciation and proposed inflows before tax and depreciation. Underline the word before tax and depreciation. Is it NPBDT again? Over its expected useful life are year 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, 10,000, 15,000, 15,000 and 25,000. Calculate the payback period and the profitability, and second one is ARR, accounting rate of return. Are we exactly clear with that one? See the calculations now. First of all, question number 5. अभी यहाँ पे मेन बात क्या है पता है कि हमारे जो कैश फ्लोज है ना वो कांस्टेंट नहीं है हर साल, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 5 इयर्स की. फर्स्ट पे बैक पीरियड निकालने के लिए कैश फ्लो की ज़रूरत है. क्वेश्चन नंबर 5, माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट is 50,000 I guess, and my tax is, they are saying it's 55%. This is initial information. Correct है ना? अभी कैश फ्लो चाहिए and they have given you NPBDT. 5 साल के हर एक NPBDT अलग है. So what am I saying? एक टेबल बनाना पड़ेगा अभी कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के लिए. ईयर NPBDT माइनस डेप्री करेंगे, NPBT माइनस टैक्स करेंगे, NPAT प्लस डेप्री ऐड करेंगे तो CF पे पहुंच जाएंगे. और ये हमें कितने साल करना है? 5 इयर्स. करेक्ट है? ईयर 1, 2, 3, 4, 5. This is how it works. फर्स्ट वन, ईयर 1 का NPBDT कितना दिया उन्होंने आपको? आई गेस इट्स 10,000. सेकेंड ईयर 10, थर्ड ईयर 15, नेक्स्ट ईयर 15, द लास्ट ईयर 25. डेप्री, कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 50,000. 5 ईयर इज अ लाइफ. यहीं पे निकाल देता हूँ. डेप्री 50, स्क्रैप वैल्यू नील, लाइफ 5, 10,000. SLM डेप्री है, so 10,000 will be the depreciation in all the 5 years. Before tax 10 minus 10, nil. No tax, nil. Depree 10,000, cash flow 10,000. Clear with the calculations? Second, before tax nil, प्रॉफिट ही नहीं है तो टैक्स क्या लगेगा? आफ्टर टैक्स नील, डेप्री वापस ऐड करें 10,000, सो माई कैश फ्लो विल बी 10,000. थर्ड ईयर 15 माइनस 10, 5. 5,000 पे 55% का टैक्स 2750. सो माई आफ्टर टैक्स विल बी 2250. उस पे 10,000 का डेप्री ऐड कर दूं तो 12,250. माई कैश फ्लो. Fourth year, I guess same. 5, 2750, 2250, 10, 12,250. Last, 25,000 minus 10, 15,000. 15,000 पे 55% tax, 8,250. 7, 6,750 after tax, and 6,750 plus this 10,000 will be 16,750. Are we clear with that? और कैश फ्लोज का हम टोटल कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 54 and 60, 61, 61,250 is a total. एक एक कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं आराम से, आप देखिए. फर्स्ट वन, पे बैक पीरियड. पीरियड आफ्टर विच वी गेट आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक. हमने बिजनेस में 50,000 लगाया, मुझे ये जानना है कि मेरा 50,000 वापस कब आ रहा है.
ईयर 1 में 10 आया, ईयर 2 में 10 और टोटल 20 हो गया, 30, 40, 44, 500 4 साल में आ चुका है। अगर 16 ले लूँ तो मैं 61 पे पहुँच जाऊँ, मुझे 61 नहीं चाहिए, मुझे 50 वापस चाहिए। सो योर कैलकुलेशन हैव टू बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 साल तक आप 44,500 पे पहुँच चुके थे, हमें 50 तक पहुँचना है। 44,500 से 50, आई नीड 5,500 मोर आउट ऑफ 16,750। क्यूमुलेटिव का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स में बनाया मैंने आपके लिए, बट दिस इज हाउ योर कैलकुलेशंस हैव टू गो। एकदम क्लियर है? चलो 5,500 डिवाइडेड बाय 16,750 is equal to 4.328 years is my payback. Correct? 4.328 years में अपना पैसा वापस आ गया। Second, payback profitability. Payback profitability. And what do we have in payback profitability? Payback profitability is inflow minus outflow. I can see an inflow of 61,250 पहले निकाला है, outflow at 50,000, so your answer is 11,250. That's inflow minus outflow, 11,250 payback profitability. Are we getting that? Too good. Third, first one payback period, second one payback profitability, third one ARR is equal to average profit after tax upon average investments multiplied by 100. Average profit after tax upon average investments multiplied by 100. Take it slow. Average profit after tax, profit after tax, इस कॉलम का एवरेज लेना है हमें। 0 plus 0 plus 2250, 2250 and 6750, 2 and 2 4 and 6 7 10 11 11,250 divided by 5, 2250, एंड याद रखना डिवाइड बाई 3 नहीं है, डिवाइड बाई 5। पहले 2 साल में नील आ रहा है पर वो ईयर तो है ही, सो इट इज 2250। सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2250। समझा कैसे आया? सारे प्रॉफिट्स उसका एवरेज कर लिया। अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 प्लस क्लोजिंग प्लस वर्किंग कैपिटल। ओपनिंग 50, क्लोजिंग नील डिवाइड बाई 2 प्लस क्लोजिंग है नहीं प्लस वर्किंग कैपिटल है नहीं, सो 50 डिवाइड बाई 2 इज 25। 2250 डिवाइड बाई 25,000 into 100. I'm getting an answer that is 9%. into 100 नहीं भूलेंगे। एकदम क्लियर, जकास है, टू गुड। पे बैक पीरियड हो गया, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, ARR हो गया। चलिए इसके बाद अब हम लोग जाएंगे डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे। पहले ये कॉपी करके कंप्लीट कर लो।